Hello students, hope you all are doing well. My name is Mauli and today we are going to begin our chapter 1 of unit 2. Our unit 2 has given one particular theme which is friendship, and our first chapter is The Unlikely Best Friends by Subba Rao. So we are going to discuss two unlikely best friends in this story. So without further delay, let's move into the pre-exercise. So in the pre-exercise, we all have friends, right? And friends are very important part of our lives. So you have to say the reason that why do you think so that friendship is most important part of your life. So there is one famous quote by Aristotle that friendship is a single soul divided into two bodies. Okay, Aristotle told this, that friendship is a single soul and divided into two bodies, which from this quote itself we can say that friendship is most important in most important relationship in human life. So from your textbook perspective, we can say that it gives us comfort. Okay, we can share our emotions with them. They support us. Okay, so you can give these three reasons. Now you have to complete the following sentence by writing in the shapes given below. Share your completed sentence with your classmates. So what you have to do is that you have to write that what do you do with your friends. For example, first one is that with my friends what do you do? With my friends I play, then I study. Then third one, what do you do with your friend? With my friends I play, I study, I share my emotions. Yeah, so share things. Okay. Okay. Now with my friends I feel. How you feel with your friends? So first of all, happy, of course. Then I feel with my friends I feel supported. You feel that you constant have that back support when you have your friends. And then we all love our best friends, so or friends. So when I am with my friend I feel loved. Okay. Okay, next, what can be the meaning of unlikely? Discuss it in group and then discuss it with your teacher. What do you think? What is the meaning of unlikely? So unlikely means something very unexpected. So what is the clear meaning of unlikely? Unexpected. Okay, which is not unusual also we can say, which is not like common. Okay, जो हमें कोई बार देखने को मिलता है जो यूजुअली हम नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा. ओके, वो हमें स्टोरी पता है. टू ह्यूमंस की फ्रेंडशिप इज कॉमन इन अवर सोसाइटी एंड इट इज कॉमन इन जनरल ऑल्सो. बट वॉट इज अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि कैट और डॉग की दोस्ती, वो हमेशा से ही दुश्मन रहे, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि कैट एंड डॉग आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, देन इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि जो लोग ऑलवेज लड़ाई करते हैं वो अभी बेस्ट फ्रेंड्स है. सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? वेरी अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल. You have to delve deep into this meaning because whole chapter is on this word only, unlikely. That is why I am explaining it very briefly. Can you think of some unlikely best friends? Yes, we just discussed cat and dog, right? Then mongoose and snake. Yeah, mongoose and snake, जो हमेशा से ही लड़ते ही रहते हैं, बट स्टिल इफ दे आर फ्रेंड्स देन इट विल बी वेरी अनयूजुअल और अनलाइकली. ओके, चलो. यस, सो इन आवर चैप्टर हु इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स? पहले तो है हमारे गजराज.
Okay, this elephant's name is Gajraj. Okay, from the expression you can say that Gajraj is looking very sad. See, his eyes are looking downwards. He is not feeling very active. वो ऐसा उसके ईयर्स ऐसे गिरे हुए हैं. यूजुअली हम देखते हैं कि एलिफेंट्स के ईयर्स ऐसे खड़े होते हैं एंड स्विंग होते हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट, राइट. और ये कौन है? इसके पास एक स्टिक है, वो एलिफेंट के पास खड़ा है, विच मीन्स दैट ही इज मोहत. नाउ हु इज मोहत? मोहत इज अ पर्सन हु टेम द एलिफेंट्स. ओके, जो उनके पास रहता है, केयर करता है बेसिकली एलिफेंट्स की. सो वी कैन से मोहत्स आर केयर टेकर्स ऑफ एनिमल्स. ओके, चलो, सो ये क्लियर है, ये गजराज है, ये मोहत है. अब आगे देखते हैं. सो फ्रॉम here our chapter starts. Okay, so let's read the chapter first. क्या बोल रहा है वो? That Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephants should be well looked after. So booth, पहले जो difficult words है वो हम पहले समझ लेते हैं. Okay, so बूथ. बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर स्पेस. जो स्पेस गजराज के आजू बाजू जो ऐसा बनाया हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल गजराज इज स्टैंडिंग हियर, देन उसको रहने के लिए एक रूम जैसा छोटा सा स्टेबल जैसा बनाया है, विच इज लाइक दिस, और यहाँ पे गजराज होगा. सो दिस रेक्टेंगुलर स्पेस इज कॉल्ड बूथ. ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्टेबल्स. स्टेबल इज लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. हॉर्सेस है, काउ है, एलिफेंट है, सबके लिविंग स्पेस को स्टेबल. बेसिकली ऑल एनिमल्स वेयर दे लिव इज कॉल्ड स्टेबल्स. ओके, क्लियर. नाउ इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि एलिफेंट था, उसको राजा ने बोला था कि इसकी बेस्ट तरीके से खातिरदारी होनी चाहिए. उसको बेस्ट बूथ में रखा गया था और उसको बोला गया था कि उसकी देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज गजराज वॉज फॉन्ड ऑफ किंग. मतलब कि किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, मतलब कि किंग्स को एलिफेंट्स बहुत पसंद थे. उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि एलिफेंट्स की अच्छी तरीके से देखभाल करनी है. एग्जैक्टली लाइक करेंटली व्हाट एग्जांपल वी आर सेइंग of Vantara, like Anant Ambani is taking care of animals, right? वैसे ही स्पेसिफिकली एलिफेंट्स आपने देखा हो तो वैसे ही किंग ने ऑर्डर दिया था कि एलिफेंट्स की अच्छी तरीके से देखभाल करनी है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स Gajraj was sad because he had no friends. The Mohat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mohat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. इसमें क्या हार्ड वर्ड है? इंटरेक्टेड विथ, मतलब कि कम्युनिकेट. हम नहीं बोलते कि हमारा उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, उसका मतलब क्या है कि हमने इतना कम्युनिकेशन नहीं किया था. ओके, अब ये पैराग्राफ में ऐसा बोल रहे हैं कि गजराज बहुत ही ज़्यादा सैड है. क्यों सैड है? क्योंकि गजराज के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. मोहत उनके पास रहता था बट ही वॉज जस्ट अ केयर टेकर. वो उसको खाना देता था, वो उसको नहलाता था पॉन्ड में ले जाके. ही वॉज गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड. वो अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर रहा था, उसको ज़रूरत पूरी उसकी ज़रूरत समझता था और उसको सब कुछ प्रोवाइड करता था, बट ही वॉज नॉट अ फ्रेंड. ओके, हम कई बार ऐसा समझ लेते हैं दैट दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली लिविंग विथ मी, विच मीन्स दैट ही इज माई फ्रेंड, बट दैट इज नॉट ट्रू. फ्रेंड इज समथिंग और फ्रेंड इज समवन विथ हुम वी फील कनेक्टेड. ओके, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ गजराज के साथ. सो वो बोल रहा है आई विश, गजराज इज सेइंग दैट आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed
he pushed some food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of it. As soon as he finished eating, he fell asleep. Okay. Luckily, Gajraj had one friend now. Okay, we will see. सबसे पहले जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं. इसमें है स्ट्रेड, मतलब कि केम बाय मिस्टेक, गलती से कहीं पे जा गिरना. ओके. फिर है मंचिंग, मतलब कि खाना, च्यूइंग, कॉन्स्टेंटली कुछ खाना. वैग्ड मतलब मूव्ड साइड टू साइड, जैसे डॉग्स अपनी टेल्स हिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेगिंग ऑफ द टेल, तो वो वैग्ड. फिर है कन्वे, टू कम्युनिकेट. ओके, कुछ बात अपनी रखना, प्रस्तुत करना जिसे हम बोलते हैं वो. ओके. तो उसमें क्या बोल रहा है कि वो मन ही मन में सोच रहा है कि आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ. मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं खेलूं. उसी दिन वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल. गलती से एक डॉग उसके स्टेबल में आ गिरा. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry and he pushed some of the food. अब गजराज कुछ खा रहा था और एकदम से वन डॉग की, तो उसे लगा कि ये बहुत ही टायर्ड, थका हुआ लग रहा है, लेट मी गिव हिम सम फूड. उसने अपना कुछ फूड उसको दिया जो वो खुद मतलब चबा रहा था. तो डॉग को तो भूख लगी हुई ही थी, तो उसने अपनी टेल वैग की, विच मीन्स दैट व्हेन डॉग वेग हिज टेल, विच मीन्स दैट ही इज लाइकिंग दिस थिंग. उसने खाया और थैंक्स बोला, ग्रेटिट्यूड कन्वे किया. और फिर एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग वो सो गया, फेल अस्लीप. मतलब कि कौन सो गया हियर, ही मीन्स डॉग. ओके. गजराज ने खाना ऑफर किया, उसने खाया और फिर वो सो गया बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड. ओके, आगे देखते हैं. The next morning, the Mohoth found stray dog on the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. So he threw some crumbs. Crumbs मतलब small pieces of food to the dog, which the animals accepted, wagging his tail. Again, wagging his tail मतलब to like. ओके. डॉग जब अपनी टेल वेग करता है मतलब उसे वो अच्छा लगा है. फिर नेक्स्ट डे जब मोहत आया तब उसने देखा कि ये जो स्ट्रे डॉग है वहाँ पे आया है, बट एज सून एज गजराज वॉज कंफर्टेबल विथ हिम, मोहत ने भी उसे कुछ नहीं किया. ओके. क्योंकि गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी और कोई नुकसान नहीं था. उसने भी उसको कुछ खाना दिया. ओके. क्रम्स मतलब लिटिल पीसेस ऑफ फूड, और डॉग ने वो खाया. आगे. When the elephant went for a bath, the dog accompanied him. Accompanied का मतलब होता है went with him, साथ में कंपनी देने के लिए जाना. नहाने के लिए साथ में गए वो लोग. Plunging into the water, the elephant gave him a shower using his long trunk as the dog watched. Okay. Plunging मतलब कि jumping. Plunging into the water. Elephant जो रोज जाता था अपने पॉन्ड में नहाने के लिए, because apparently he was royal animal. तो वो गया तो साथ में डॉग भी गया, कंपनी दी उसको. तो उसने क्या किया, एलिफेंट ने अपनी जो लंबी ट्रंक थी उससे डॉग के ऊपर पानी स्प्लैश किया, विच सो दे वर लाइकिंग इट बेसिकली. सबसे पहले तो उसने ऐसे ही ट्रंक में भर के ऐसे ही पानी स्प्लैश किया, वो डॉग ने देखा और फिर उसने उसके ऊपर स्प्लैश किया वाटर. द dog yelped for hated taking shower. The Mohoth laughed. Yelped मतलब क्या होता है, cried. Here cried doesn't mean कि actual में रोना. Cried का मतलब होता है जोर से कुछ बोलना. ओके. अब डॉग को तो शावर लेना पसंद ही नहीं होता, तो द डॉग yelped, उसने ऐसी चीख हम कह सकते हैं या फिर जोर से कुछ बोलना, बिकॉज उसको नहीं पसंद था. एंड ये एक्टिविटी देख के मोहत हंसने लगा, बिकॉज the friendship was started to create it, na? See, this is the picture of it where elephant is splashing water. अब आप देखो कि उसके जो आईज है वो, डॉग के जो एक्सप्रेशन है वो, फिर उसके ईयर्स है वो,
So from the picture you can say that both of them are very happy. They both are very happy with each other, है ना. देखो ओके. ऑन देयर अब वो लोग ने पॉन्ड में अच्छे से नहा लिया, मस्ती कर ली. अब क्या हुआ? On their way home, the elephant picked the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. Delighted मतलब happy. वापस जाते टाइम एलिफेंट ने ट्रंक से डॉग को उठाया और अपनी पीठ पे बैठा लिया एंड डॉग लव्ड इट. ही वॉज वेरी हैप्पी. अब अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग. बंटी ही येल्ड. येल्ड हियर ऑल्सो मीन्स क्राइड, मतलब जोर से चीखना. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. मतलब कि ये जो बंटी था, डॉग का नाम क्या था? बंटी. ओके, बंटी था वो किसका डॉग था? फार्मर का डॉग था. और फार्मर उसको कब से ढूंढ रहा था बिकॉज बंटी वॉज मिसिंग फ्रॉम द हाउस. एंड बंटी ऑल्सो हग्ड, मतलब hug is giving hug to someone, which means that Bunty was also very happy with farmer, but उसको भी शायद कोई friend की ज़रूरत रही होगी. He was glad that he found him now. The Mahout had no objection to the farmer taking the dog home. Mahout को कुछ दिक्कत नहीं थी कि farmer ले गया dog को, उसका dog था वो उसको ले गया. So he didn't have any kind of objection, मतलब कोई भी कोई भी दिक्कत ना होना. ऑब्जेक्शन मतलब. द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम. ओके, अब जो हम यूजुअली डॉग को बेल्ट मतलब वो पहनाते हैं, मे बी विलेजेस में रोप का यूज़ करते होंगे. तो फार्मर ने बंटी के नेक में रोप डाला और बोला दैट कम ऑन लेट्स गो होम. ओके. Now, before going towards the final end of the story, we have given some exercise. Okay, talk about the things Gajraj and Bunty. Gajraj कौन है? Elephant. Bunty कौन है? हमारा dog. Did together. Now write in the shapes given below. हमने जैसे पहले हमारे फ्रेंड्स के लिए किया था, ये हमको करना है. हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गजराज एंड बंटी played together, then eat together, है ना, खाना खाया था. आप पास्ट टेंस में ही लिखना इसको. ओके, सो एट टुगेदर, देन स्लेप्ट टुगेदर, है ना, साथ में दोनों सो गए थे. एंड देन हैव बाथ टुगेदर, सो बाथ टुगेदर. ओके, तो गजराज और बंटी ने क्या किया था? प्लेड, एट, स्लेप्ट एंड बेथ, हैविंग बाथ. व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी? ओके, हम किसी भी अपने पालतू जानवर जो खो गया होगा उसको बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल फील सो हैप्पी एंड वी हग देम. एक्जैक्टली दैट हैपेंड, दैट द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज बंटी वॉज मिसिंग फ्रॉम द हाउस. फाइनली farmer found him. इसीलिए. ओके, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? ओके, आपको क्या लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ के फार्मर के पास जाएगा? आई थिंक येस, बिकॉज फर्स्ट डॉग्स आर वेरी लॉयल एनिमल. ओके, वो अपने मालिक को कभी भी नहीं भूलते. एंड सेकेंड चीज दैट बंटी वॉज ऑल्सो हैप्पी विथ फार्मर, though he was happy with elephant too, but apparently he knows that who is his owner. So I think yes, Bunty will go with farmer. Okay, okay, chalo. Now our part 2 begins. Only when the farmer pulled the rope did they realize that he was being taken away from his friend. He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor Mahout noticed that two friends were in tears. Okay, realize मतलब understand and winced मतलब shrunk back in pain or distress. ऐसे we can say sigh. Okay,
ओके तो जब रोप खींचा फार्मर ने कि चलो नाउ वी हैव टू गो, तब बंटी को रियलाइज हुआ कि नाउ वी आर बीइंग अपार्ट, हम अलग हो रहे हैं। और इसी टाइम पे एलिफेंट भी विंस्ड मतलब कि श्रंक बैक, मतलब जोर से हम साई, कभी कभी साई भी बोलते हैं उसको, पेन हुआ, उसको फील हुआ कि मेरा फ्रेंड मुझसे दूर जा रहा है, वैसे भी मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। फार्मर ने भी नोटिस नहीं किया और मोहत ने भी नोटिस नहीं किया दैट दिस टू फ्रेंड्स आर सो स्ट्रांगली बाउंडेड विथ ईच अदर, दे वर इन टीयर्स, पर ये उन्होंने नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट डे लंच टाइम मोहत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे मोहत ने एज यूजुअल उसको खाना दिया। When the Mohot came back after finishing his other chorus मतलब daily duties, okay, he was surprised to see that the food had remained untouched. गजराज ने फूड खाया ही नहीं था, ओके, कुछ भी नहीं खाया था उसने। जब वो वापस आया खाना रख के, उसने देखा तो ओके सी टीयर्स आप देख सकते हो, फिर से जो कान हो और आइस के एक्सप्रेशंस देख सकते हो। हियर डॉग का भी टेल भी उसकी गिरी हुई है, ये रोप है, ये फार्मर है, ओके। वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता होना, ओके। उसको उससे चिंता हुई कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, खाना क्यों नहीं खाया। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट दो थॉट द मोहत। मोहत को ऐसा लगा शायद कुछ पेट में गड़बड़ होगी, इंडाइजेशन हुआ होगा, इंडाइजेशन में अपसेट स्टमक, ओके। स्लाइट मतलब लिटिल, स्लाइट इंडाइजेशन, स्लाइटली हिज स्टमक वॉज मे बी अपसेट, ओके। मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए, कल खा लेगा। कीपिंग वन मील इज नॉट अ ह्यूज थिंग, ओके। तो उसने क्या कि दैट्स ओके, ही विल ईट नेक्स्ट डे। That night too Gajraj did not touch, nor the next day. Now the Mohot was worried. He ran his hand on Gajraj's tummy, which means his stomach, and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? He is missing his friend, that dog. The Mohot wondered. अब मोहत को पता चला that शायद से वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है, बिकॉज उसका स्टमक टच करके देखा, he was absolutely fine. उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, मतलब कि यही रीज़न हो सकता है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. जब से फार्मर उसको एलिफेंट से वापस लाया था घर पे, तब से बंटी ने भी कुछ नहीं खाया था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. जब फार्मर आया तब उसने देखा था कि जब बंटी एलिफेंट की बैक पे बैठा था तब ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड राइट नाउ द एक्सप्रेशन वॉज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अलग दिख रहा था बंटी, ओके। ही वॉज वेरी सैड। तो उसने पूछा कि क्या आप मिस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, ओके। तो उसने रोप खोल दी और कहा कि मैं आपको भूखा नहीं देख सकता, इफ़ यू एक्चुअली मिसिंग योर फ्रेंड दैन जस्ट गो, मैं आपको अपियरेंटली खुश देखना चाहता हूँ। सो वॉट हैपन, फार्मर ने उनको जाने दिया। नाउ द फार्मर रिमूव्ड द रोप विच ही हैड टाइड द डॉग, एंड द डॉग थॉट वीक sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. जब वो स्टेबल में आया तभी वो रुका, ओके। स्प्रैंग मतलब कि जंप, जोर से जंप कर। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक, गेव हिम जॉयस स्विंग, मतलब झूला झूलाना एक साइड से दूसरे साइड, या मूव साइड टू साइड, बैक एंड फोर्थ। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, ओके। फार्मर ने कहा कि आप दोनों पहले खा लो कुछ, ओके, आपने कुछ खाया नहीं है। By then the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched the satisfaction, मतलब एक संतोष, जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलता है और जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो। The two friends eating food. It's not always Gajraj who has found a friend, said the Mohot hugging the farmer. I have also found one. मतलब कि यहाँ पे ना दो फ्रेंड्स की पैर हुई थी, फर्स्ट फार्मर एंड
Mahat, yes, farmer and wait. First pair and second pair was of course dog and एलिफेंट. ओके, तो उन्होंने बोला कि पहले आप लोग कुछ खा लो, और फिर महत ने बोला कि इट्स नॉट ओनली गजराज हु फाउंड हिज फ्रेंड और डॉग हु फाउंड हिज फ्रेंड, बट ऑल्सो अस थॉट हगिंग अ फार्मर दैट आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. मुझे भी एक फ्रेंड मिला. सो नाउ फार्मर एंड महत आर ऑल्सो वेरी नाइस फ्रेंड. आप ये पिक्चर में देखो, you can see they both are hugging each other. Gajraj and Bunty are together, so finally they are arrived. Okay, अब आपको कुछ डिस्कशन दी हुई है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी दैट व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड. क्यों गजराज ने खाना नहीं खाया था? बिकॉज ही वॉज मिसिंग बंटी who were friends at the end of the story. हमने अभी अभी डिस्कस किया गजराज एंड बंटी, महत and farmer. Okay, so yes, this was the story of two unlikely best friends. Hope it is clear and hope you enjoy learning with us. Thank you so much.